students, good morning to all of you. I am Pawan Kumar, your SST teacher. Now I am dictating chapter 18. The name of the chapter is Democracy and Equality. For class 7th, I am teaching this chapter. Okay, so what this chapter is all about. The name of the chapter is Democracy and Equality. So what the democracy is all about. Democracy means Prajatantra, Loktantra, and equality means Samanta. Okay, that some sort of equality. All like democracy, first of all, let me give you the layout or brief sketch of, brief description of the definition of democracy. What the democracy is all about. Democracy, especially, it runs for the people, by the people, and of the people, as we have already discussed in audio classes as well. That definition has been given by Mr. Abraham Lincoln, one of the most traditional definition of democracy. Okay, and especially democracy is all about people's government. As in our country, in India, democracy, democratic form of government we have. India is one of the having lengthiest form of democratic government. India is have. So democracy, especially, peoples over here decide and choose their representatives. Okay, and especially run by the people. Okay, as per according to the wish of the people, democratic government runs. So यहाँ जनता की सरकार है. Okay, overall ultimately कंट्रोल जो है, पावर जो है, वो जनता के हाथों में है. ओके, इक्वालिटी जो है आपका, ऑल पीपल हम लोग जानते हैं आर इक्वल बिफोर द लॉ विद रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, कलर, रेसेस. ओके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. नो एनी फर्दर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी बराबर है. बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, विमेन है, किसी भी तरह के कोई भी रेसेस और कलर्स और डिफरेंसेस, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, वेदर मैन और विमेन, बॉयज और गर्ल्स. ओके, ऑल आर इक्वल. सो एज फार एज this chapter concern, in democracy and equality perspective, as we have already seen, our country got independence on 15th August 1947, and after that we are following the democratic rule. The rule of democracy we are still continuing. In our country, democratic rule is going on, still going on, and our country has adopted the democratic form of government. Like from the British power, British control, our India got independence nearly about 200 years ago. Our country was slave. हमारा देश जो था गुलाम था, ब्रिटिशर्स के हाथों में था, उनके कंट्रोल में था. एंड आफ्टर दैट इट गॉट इंडिपेंडेंस. तो उसको जरूरत पड़ी कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक किस तरह का सरकार चाहिए, होना चाहिए, एक जो भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में ढंग से एक उसका कंट्री रोटेट करे, रेगुलेट करे. तो वी रिक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो इन दैट पर्सपेक्टिव we have adopted democratic form of government. ठीक है, उसी पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया. तो फिर देखा हमने अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस किए और अडॉप्ट किया. हर अलग अलग तरह की चीजें, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. ओके, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक we have adopted from foreign countries. Okay, so फिर ultimately हमारा constitution frame हुआ, designed हुआ. It has been designed by like our first and foremost president, that he is none other than Mr. Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar. उन लोगों के सपोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया, फ्रेम किया गया. So what was constitution all about? It was framed for free India. Okay,
कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान बनाया गया जिसमें एक कोड ऑफ रूल और कंडक्ट और सिस्टमैटिक रूल्स और रेगुलेशन से लोग काम कर सके, उसके तहत लोग फंक्शंस कर सके और अपने कंट्रीज को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से चला सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है आपका प्रीएम्बल प्रस्ताव कुछ रखा गया। प्रीएम्बल को स्पेशली कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक मानदंड है, एक नॉर्म्स, एक स्टैंडर्ड, एक डिग्निफाइड, एक रिकॉग्नाइज, एक डॉक्यूमेंट ले ऑफ रिकॉर्ड एक तैयार किया गया है इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द डॉक्यूमेंट एंड द रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन कोडेड इन दैट preamble, and as in the constitution it has been properly framed. रूल्स एंड रेगुलेशन है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका। ये फुल्ली ये कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल in terms of political aspect. Okay, India's constitution is very lengthiest and important as well. So constitution का especially हम देखेंगे definition. It is a set of regulations that a set of people have made and agreed a written document. It lays down powers and functions of the government. Especially constitution में है क्या, set of rules and regulations है, लोग उस पे सहमत होते हैं, उस पे आपका लोग अग्री करते हैं कि आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट भी वर्क करता है। अवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सब ऑल दीज government bodies all are working as per according to the constitution of India. So उसके beyond नहीं जा सकते, they can't go beyond the constitutional right. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन के डिसीजन, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दे कांट टेक एनी फर्दर डिसीजन बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। ओके, तो उसमें पूरा हमारे संविधान को मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे इंडिया में, कोई भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, इस बेसिस पे सभी को बराबर दर्जा दिया गया है, सभी बराबर हैं यहाँ, ऑल आर इक्वल। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एज वेल, और कास्टिज्म, पॉवर्टी, लिटरेसी, वीकेंड, कोई भी इस तरह का ऐसा कुछ भी डिफरेंसेस यहाँ क्रिएट नहीं किया जाता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली देखिएगा, इट वाज मेनली अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, it was mainly adopted on 26 November 1949 and finally it got effective on 26 January 1950. On that particular day we are celebrating Republic Day as well. तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकृत किया गया, उसे अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन जब अडॉप्ट किया गया, इसीलिए उसी वजह से उसी दिन को सिलेक्ट किया गया as for celebrating Republic Day on 26 January 1950. We have implemented the constitution and our constitution came into force, मतलब इफेक्टिव कार्यान्वित किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब उस पर्सपेक्टिव में देखिएगा, एंटी नेशनल आप लोग समझ लीजिए, जो नेशन के विरुद्ध है, जो अगेंस्ट है, दोज पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो उसके कस्टम्स, रिचुअल्स और उसके लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, दे आर द एंटी टेररिस्ट, उनको आप टेररिस्ट बोल सकते हो, एंटी नेशनल। जो जैसे सपोज फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, हम लोग नेशनल एंथम गा रहे हैं एंड दे आर सिटिंग डाउन, ओके, दे आर नॉट पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, उनको एंटी नेशनल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज बताया गया है, और हमारा फंडामेंटल राइट है, वी हैव टू कास्ट our vote, we have to exercise our vote, and fundamental duty है, we must walk on the left side of the road। लेकिन अगर वो इंसान लेफ्ट साइड ऑफ द रोड फिक्स कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, दाहिने साइड रोड के चलता है, तो इट मीन्स वो क्या है, एंटी नेशनल है, ठीक है, यानी वो उस राष्ट्र के नियम के विरुद्ध है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटी नेशनल। इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज दे ब्रिंग about separation in social life, they are anti-national because they generate jealousy and antipathy between caste and caste। समझ रहे हैं, इस तरह के लोग क्या करते थे, पहले ऐसा होता था
बी आर अम्बेडकर ने, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो उन्होंने कास्टिज्म को रिमूव किया, इरेडिकेट किया। इरेडिकेट मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। तो उन्होंने इस चीज को समझा कि लोगों में इस तरह के डिफरेंसेस है, लोग जाति प्रथा को लेके लोग ऊंच नीच फील करते हैं, दे आर कंसिडरिंग अपर क्लासेस, लोअर क्लासेस, इस तरह का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो उन्होंने इसको दूर किया, खत्म किया, रियलाइज किया। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया, ठीक है, 25 नवंबर को। तभी देखिए 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ऐसा 25 नवंबर को उन्होंने संविधान के सभा में बताया लोगों को, और फिर ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। एंड फाइनली ऑन 26 जनवरी, इट मीन्स दिसंबर जैन, 2 मंथ बाद कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कर दिया गया, फोर्स में ला दिया गया, लागू कर दिया गया। अब इस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो फुल क्रेडिट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में इफेक्टिव लाने का क्रेडिट जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है? स्पेशली द टर्म एंड डेफिनेशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दोज पर्सन हु आर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, दे आर एबल टू कास्ट देयर वोट। जो 18 वर्ष के सर्वव्यापी एक वैश्विक रूप पे यूनिवर्सली मतलब ग्लोबली वो उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको पूरा एक दर्जा दे दिया गया, उनको स्टैंडर्ड एक सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको एक्सेप्ट किया गया कि अब आप वोट देने के अधिकार हैं, आपको है, अधिकृत है, अब आपको वोट देने का अधिकार मिल चुका है, बिकॉज यू आर अटेनिंग द, आप 18 वर्ष के हो चुके हैं। सो यू आर एडल्ट, तो होल ओवर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसलिए दैट इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। और वो दोज पीपल नाउ दे कैन कास्ट देयर वोट और चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। अब वो 18 वर्ष का वयस्क हो गया, अब वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष वर्ग, कोई भी भाषा, कुछ भी कलर, ब्लैक हो, व्हाइट हो, फेयर हो, कैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता। ही और शी मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ही शुड कास्ट हिज और हर वोट, ठीक है। तो वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 1 मैन 1 वोट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति का एक वोट होता है इन इंडिया इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी का एक चीफ फीचर्स कह लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑल्सो दैट 1 मैन 1 वोट। एक वोट, 1 मैन 1 वोट, इट मीन्स एक व्यक्ति का एक वोट अधिकार होता है। ही और शी शुड एक्सरसाइज ओनली 1 वोट। एक ही मत वो दे सकता है, उससे ज्यादा 1 मैन नॉट कास्ट मैनी वोट, दे विल कास्ट ओनली सिंगल वोट, और उसी के आधार पे वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, पीपल ऑफ इंडिया कास्टिंग देयर वोट रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स पीरियड, एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग चुनते हैं। हमारी जो सरकार हम चुन के लाते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 years, so by exercising our voting right. Now students, we will focus, India is having multi-party system, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज देखिएगा आप, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, कार्टून्स हमारे पास इतने सारे, ये सब जो है पॉलिटिकल कार्टून बहुत बनते हैं। लुक्रेटिव पैकेज समझ रहे हैं? जब लोग लालच देने लगते हैं, जब इंडिया में जब भी इलेक्शंस होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी कैंपेन करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ टेम्पटेशन, लोगों को लालच देती है, फैसिलिटीज देती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज का प्रलोभन देती है, एंड दे आर गिविंग सच सम सॉर्ट ऑफ दैट लाइक अट्रैक्टिव पैकेज टाइप का, कि आपको हम ऐसा प्रोमिसेस, झूठे फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, इस तरह के। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग प्रोमिसेस इन द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड दे आफ्टर दैट दे फॉरगेट दैट प्रॉमिस। यही ऑल अबाउट है पॉलिटिकल पार्टीज। और इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का है। इंडिया इज नॉट हैविंग 2 party और सिंगल पार्टी, इंडिया इज हैविंग मैनी मल्टी पार्टी। इट मीन्स जैसे कि बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, एनडीए हो गया, आपका जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, टीडीपी हो गया, तो जितने भी आपके अलग अलग लोक जनशक्ति पार्टी, सारे अलग अलग वेरियस मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ सब कोई अपना अपना एक पार्टी बना लेते हैं और इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर हियर, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में।
अब आप आ जाइए, देखिए कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या, स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ये कोलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम है। अगर एक पार्टी समझता है कि मुझे हम नहीं वोट जीत पाएंगे, ऐसा सपोज जो भी है इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, उनको ऐसा अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ इनको फील होता है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, अलाइन कर लेते हैं। तो वही गठबंधन की सरकार अलायंस जो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, दे आर ज्वाइनिंग देयर हैंड्स एंड दे फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज ऑल अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट। In Indian democracy, when a single majority party cannot form the government, some political party join hands to form the government. It is all about coalition government. उसी को कहते हैं सहयोग का सरकार, गठबंधन का सरकार, आपका कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपका महागठबंधन जो हमारे बिहार में बना है ना, जेडीयू और आरजेडी का जो बना महागठबंधन की सरकार, वही होता है कोलिएशन गवर्नमेंट। अब आ जाइए पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रियम्बल ने, प्रस्ताव ने कुछ जो आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है उसने कुछ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम राइट्स टू इक्वालिटी, मेन प्रोविजंस दिया है। राइट टू इक्वालिटी का जो मेन प्रोविजंस है बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसमें कुछ प्रस्ताव दिए, फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिया गया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ प्रोविजंस, कुछ बातों को पॉइंट को रखा गया है। तो फर्स्ट मेन उसमें प्रोविजंस, उसमें जो सुधार किया गया कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग समान हैं कानून की नज़र में, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब ऊंच जाति का ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध। तो किसी भी आधार पे जाति, धर्म, वर्ग विशेष, जेंडर, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पे अगर किसी भी तरह का अगर कोई भी अगर भेदभाव है तो उसको खत्म किया गया, निषेध किया गया। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर किसी को मतलब वो अधिकृत है, उसको अधिकार है कि हर तरह के क्षेत्र में वो जा सकता है, ठीक है, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में। उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो अपने फादर का अगर कोई प्रोफेशन है तो उसी में जाएगा। कोई भी जाति, धर्म, विशेष वर्ग का हो बच्चा, वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, और ये हमारा कानून जो है सबको इक्वल सुरक्षा देता है, मतलब बराबर सुरक्षा देता है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग विशेष नहीं देखा जाएगा। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट। बट डज एवरीवन एंजॉय, क्या इक्वालिटी एंजॉय कर रहा है? इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एवरी 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, लेकिन आपने देखिएगा नो नॉट ऑल पीपल आर enjoying the equality. Yes, ये बिल्कुल है, still people are facing some sort of inequality. अब देखिए our constitution has banned the practice of untouchability and awarding of title like राज बहादुर और खान बहादुर as they created discrimination in the society. इस तरह के जो टाइटल्स थे हमारे संविधान ने इसको क्या किया, बैन कर दिया है। जैसे राजाधिराज, महाराजाधिराज, बहादुर, है ना, खान बहादुर, जब इस तरह के जो कुछ टाइटल जो कुछ लोग अपने आप के आगे लगा लेते थे और वो उसको कंटिन्यू करते थे, होल्ड करते थे, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन बैन्ड इन आवर एज पर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे क्या, क्यों इसको खत्म किया गया? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, सोसाइटी में क्या करता है, भेदभाव लाता है, इससे लोगों में भेदभाव आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाइए स्टूडेंट, जो ये है आपका, ये सब आपका स्टोरी टेलिंग है जो आपका केस स्टडी के थ्रू दिखाया है। सिक द रैग पीकर जो उठा रहा है कूड़े कचरा, तो हाउ फार ही इज फेसिंग, ही इज डूइंग द चाइल्ड लेबर, तो सम सॉर्ट ऑफ क्या है, अनइक्वालिटी है, और ही इज फेसिंग वेरी क्रिटिकल कंडीशन एज वेल। लाइक 10-year-old boy, he picks up the rag from the garbage every morning. He is picking, मतलब जो भी गार्बेज का ये काम कर रहा है, he is रैग पिकर एंड कचरा वाला जो ही इस तरह के बच्चा काम कर रहा है। एंड ही इज when half the population of the city is still sleeping, he is doing his work. After that he works at his father's cycle repair shop till late in the evening. He wants to go to school, laugh and play like other children, but he is always working.